let's start with chapter number 11, solid, liquid and gas. What are solid, liquid and gas? These are the three states of matter. देखो ये क्या है? ये three states of matter है. Everything which occupies space and mass is known as matter. Now let's start the chapter. Everything present around us is made up of matter. Different material or substances are made up of different kind of matter. Any substance जो space occupy करता है, mass होता है, उसका हम matter कहते हैं. It is found in three different states: solid, liquid and gas. What is matter? Matter is made up of small particles called molecules. We cannot see molecule with the naked eyes. क्यों नहीं देख पाते? Because they are very small. Molecules are made up of even smaller particles, जिन्हें हम atoms कहते हैं. And atoms are called smallest particle of matter. Atom इसको क्या कहा जाता है? Smallest particle of matter. The molecule of a particular substance are different from molecule of other. Each molecule of a particular substance has same property as that of a substance. उनकी जो property होती है वो same होती है. Next is elements and compounds. What are elements? Any matter जो एक ही तरीके के atoms से बने होंगे हम elements कहते हैं. ठीक है. Any matter which is made up of only one kind of atom is called element. ये आपके किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मेटल की फॉर्म में कॉपर, गोल्ड, आयरन. नॉन मेटल की फॉर्म में आपके क्या होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन. नेक्स्ट इज when atoms of different kind, जब atoms of different kind combine they form compound, and the compound is made up of two or more kind of matter. Water is made up of two different atoms. Water से दो different atom के बने, hydrogen and oxygen. Now states of matter, three states होती है. First is solid, जिसकी फिक्स शेप, फिक्स साइज होता है. ठीक है. और जिनके पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड है. ठीक है. They are closely packed. They do not have space to move about. Solids have fixed shape and volume. जो स्पेस होती है between the molecules of solid, वो क्या होती है? Almost negligible होती है. Due to this, the force of attraction between the molecule is very strong. These two factors result in the strength or rigidity and hardness of the solid. Next is the shape of solid है वो change नहीं होती unless the force is applied. जैसे आपका आयरन हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, स्टोन हो गया. नेक्स्ट इज लिक्विड. जो मॉलिक्यूल है लिक्विड के वो लूजली पैक्ड है, उनका स्पेस है, थोड़ी बहुत स्पेस होते हैं जिससे वो मूव कर लेते हैं. लिक्विड्स की फिक्स शेप नहीं होती, ना ही फिक्स वॉल्यूम होती है. किसकी शेप लेते हैं? कंटेनर. The space between molecules of liquid is more solid. Liquid can flow and can be cooled. It is the shape of container. इसमें हम बहुत report करा. Liquid जो होता है वो flow करता है higher to lower. It is not hot and does not disintegrate. Example of some liquids are water, ghee or paste. Next is gas. जो molecule है गैस के वो sparsely arranged होते हैं, in large spaces होता है. They move around freely and gases have neither a definite shape nor a definite volume. जो spaces होती है इनके molecules की वो बहुत ज़्यादा होती है, very large. ये freely move करते हैं. What do they? They freely move. Next is change of state of matter. देखो आइस किसमें चेंज हो जाती है? वाटर में. वाटर किसमें चेंज जाता है? वाटर वेपर. वाटर वेपर किसमें चेंज हो जाता है? वाटर में. एंड देन अगेन वाटर चेंजेस इनटू आइस if you keep it fridge. You already know that water can be found in three states: solid, liquid, gas. Water can change from one state to another. आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इसको चेंज कर सकते हैं. There are different processes. Molecules in the ice absorb energy and start moving. They do not remain fixed on one position. Once they start moving around, जो ice है वो melt करता है और किसमें turn करता है? Water. If water is heated strongly, the molecule absorb more energy. Then the molecules have enough energy to move around freely. Water boil करता है, किसमें change करता है? Steam. When we cool steam, it gives us heat और क्या करता है? Water को condense करता है. और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नहीं करते हैं, वाटर फेजेस. एंड व्हाट इट फॉर्म्स आइस. नाउ चेंजेस आर ऑफ टू टाइप्स: फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. व्हाट आर फिजिकल चेंजेस? दीज आर द चेंजेस व्हेन द चेंज इज ओनली द स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिकल. इट इज टेम्पररी और आप इसको प्रीवियस स्टेट में रिवर्स कर सकते हैं. लाइक
आइस को हम वाटर में चेंज करें, उसको हीट करके फिर उसको दोबारा हम आइस में चेंज कर सकते हैं, फ्रीज कर। सॉलिड वैक्स को हम मेल्ट करना है, हीट करके फिर दोबारा से उसको हम वैक्स में बनाना है। इन्फ्लेटिंग एंड डिफ्लेटिंग बलून, ठीक है। नेक्स्ट इज इन ऑल मेंशन्ड चेंजेस वी नोटिस दैट चेंजेस वाज टेम्पररी एज वेल एज रिवर्सिबल। जो आपके फिजिकल चेंज होते हैं टेम्पररी होते हैं और इरिवर्सिबल, ठीक है। आपने क्या करा, आइस को मेल्ट करा, वाटर बन गया, आइस को वाटर को फ्रीज करा, क्या बन गई, आइस बन, ठीक है। नाउ केमिकल चेंजेस इन दे कैन नॉट बी रिवर्स, इससे नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। नेक्स्ट इज लाइक बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर, कुकिंग ऑफ फूड या बर्निंग ऑफ फूड। इन अबव एग्जाम्पल वी कैन सी दैट नो मीन्स the ash formed due to burning of paper and it is changed, क्या आप उसको दोबारा से पेपर में वापस बदल सकते हैं, नहीं। तो सिमिलरली जब को फूड है उसको हम रॉ फूड में दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस न्यू सब्सटेंस आर नॉट फॉर्म, इसमें आपका नया सब्सटेंस फॉर्म। मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन जो है वो चेंज नहीं होता है, मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन वो चेंज होता है, ये टेम्पररी चेंज होता है, और केमिकल चेंज परमानेंट चेंज होता है। इट इज यूजुअली ऑब्टेन ब्लैक बाय सिंपल, ब्लैक बाय सिंपल मींस इसको आप दोबारा से ऑब्टेन नहीं कर सकते। नाउ सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व कंप्लीट इन अनदर लिक्विड, उसको हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। ये डिसॉल्व करते हैं व्हेन दे गेट इनटू स्पेसेस, जब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस हो जाती है तो व्हाट दे डू, दे डिसॉल्व। Now material that do not dissolve in a liquid उन्हें आप insoluble कहते हैं, और जो dissolve होते हैं they are known as soluble substances. The liquid in which solvent dissolve is called solvent, और जो solid जो dissolve होता है liquid में उसको हम क्या कहते हैं, solvent। तो solvent plus solute क्या देता है हमें, it gives solution. Solid in water, solid like sugar, salt और potassium carbonate dissolve in water, और ये क्या form करता है, solution form। They are soluble in water like chalk, sand, soil and wood. They are substance, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं करते, तो व्हाट आर दीज आर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। लिक्विड इन वाटर, सम लिक्विड आल्सो डिसॉल्व इन वाटर लाइक मिल्क, बेसिन, अल्कोहल। लिक्विड जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं मिसिबल, एंड द लिक्विड व्हिच डू नॉट डिसॉल्व, जैसे आपका केरोसिन, पेट्रोल और पेंट, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं, दे आर नोन एज इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। लिक्विड जैसे जो डिटर्जेंट है वो किसकी तरह एक्ट करता है, एज अ एम्यूलिफिजर, इट मेक्स ऑयल एंड वाटर मिक्स्ड, सच अ मिक्सचर इज कॉल्ड एम्यूलेशन, इस मिक्सचर को क्या कहता है, एम्यूलेशन। नेक्स्ट इज गैसेस इन वाटर, सम गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व करते हैं। व्हेन वी बॉयल वाटर, जो बल्ब है वो फॉर्म होते हैं वेसल्स में, बट जो डिसॉल्व गैसेस होते हैं वो वाटर में प्रेजेंट। ऑक्सीजन जो होता है वो डिसॉल्व होता है वाटर में, लाइक रिवर्स, लेक्स, ओशन एंड एक्वेटिक एनिमल्स टेक इन द डिसॉल्व ऑक्सीजन, और वो कहाँ ब्रीथ करते हैं, वाटर, व्हेन दे ब्रीथ इन वाटर। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस, फर्स्ट इज थर्मल कंडक्टिविटी। व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सब्सटेंस के, दे कैरी हीट इजीली, वो हीट को इजीली कैरी करते हैं, और ये मॉलिक्यूल्स होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट। For example, like iron, copper and gold, what are they? They are the good conductor. Next most utensils, जो aluminium, steel, brass और copper के होते हैं, इनका हमें यूज करते हैं कुकिंग के। When these utensils are placed on the gas top, ये फट हो जाते हैं, and some substances molecules are not good carriers of heat. इन्हें हम क्या कहते हैं, bad conductors, like your plastic, wood or rubber. They are known as bad conductor of heat. Next is electrical conductivity. Aluminium and copper are good conductor of electricity. जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं वो एल्यूमिनियम और कॉपर के, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैरी करेगा, और अदर हैंड जो वुड और रबर है कि बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी नहीं कर सकते, दे आर नोन एज इंसुलेटर्स। जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं कैरी करते उन्हें क्या कहा जाता है, इंसुलेटर। नाउ लास्ट टॉपिक दैट इज मैग्नेटिज्म। व्हाट इज मैग्नेटिज्म? Some molecule substance attract the magnets, iron, cobalt, nickel are strongly attracted by them. इन्हें magnetic substance कहते हैं, like wood, glass, plastic, rubber. ये they are not attracted by magnet, तो इन्हें क्या कहता है, non-magnetic substance. They are known as non-magnetic substance. Now our chapter has been completed. Hope you understood the chapter.
That's all for today. Thank you.